Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So dear student, myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachod. Today we are going to discuss about the exercise 9.2 of arithmetic progression. In my previous video lecture, I have discussed some questions based on arithmetic progression, and also I have discussed what is arithmetic progression and what is the nth term of arithmetic progression and what is the sum of n terms of arithmetic progression. Okay, and also the the mean of arithmetic progression. Okay, arithmetic mean. So now I am going to discuss from question number 9. Okay, till question number 8 I have discussed in my last video. So today I am going to discuss from question number 9. So question number 9 is the sum of n terms of an arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 divided by 9n plus 6. ठीक है, तो sum of n terms of two arithmetic progression, there is two different kind of arithmetic progression. Okay, we have given. So this is question number 9. Let a is the first term, okay, and d common difference, ठीक है. This is for first AP and A dash and D dash are respectively first term and common difference for second AP. Okay, because here we have given two arithmetic progressions, so let us take A is the first term and D is the common difference for the first AP, and A dash and D dash are respectively first term and common difference for second AP. दो arithmetic progression दी है. Now it is given that the sum of these two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 divided by 9n plus 6. Let Sn be the sum of first AP and S dash n be the sum of n numbers of second AP, है ना. तो इनका रेशियो कितना दिया है, 5n plus 4 divided by 6n, 5n plus 4 divided by 9n plus 6. Okay, 9n plus 6. So we have to find the ratio of their 18th term. Find the ratio of their 18th term, t dash 18. ये हमें फाइंड करना है बेटा. ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज दोनों सीरीज के लिए सम ऑफ एन टर्म्स हमने फाइंड करना है, जो कि हमें दिया हुआ है. तो हम जानते हैं सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n by 2 2a प्लस n minus 1 into d. एंड फॉर द सेकेंड सीरीज नंबर और टर्म तो सेम ही है. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम a डैश प्लस n minus 1 टाइम d डैश. ओके, एंड दिस इज गिवन 5n plus 4 divided by 9n plus 6. So n by 2 and n by 2 cancel out. What we get? Taking 2 common from the numerator, we get a plus n minus 1 by 2 time d, and taking 2 common from denominator, we get a dash plus n minus 1 by 2 time d dash, and which is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. This 2 and 2 is cancel out, so we get a plus n minus 1 by 2 time d upon a dash plus n minus 1 by 2 time d dash is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. So see beta, we have to find out the ratio of their 18th term. So what is the ratio, what is the 18th term for the first series? क्या हो जाएगा, जिसका पहला टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, a plus 17d है ना, a plus 18 minus 1 into d, and 18th term of the second arithmetic progression will be a dash plus 17 time d dash. So we need to find the value of this amount. ठीक है, a plus 17d divided by a dash plus 17 time d dash मान रखा है मैंने ये. ठीक है ना, d dash. तो क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट. सो यहाँ पे जो मेरे पास है a प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम d डैश.
और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो a प्लस 17d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 17d डैश, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें, इसको ऐसा बनाया जा सकता है। यस, कब? इफ n माइनस 1/2 इक्वल हो जाए किसके? 17 के। सो वी कैन पुट हियर लेट n माइनस 1/2 इक्वल टू 17। ठीक है, n माइनस 1/2 की जगह क्या रखेंगे बेटा? 17। तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी मुझे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, सो n इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब ये n की वैल्यू क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे, a प्लस 35 माइनस 1/2 टाइम d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 35 माइनस 1/2 टाइम d डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 35, 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6, 9 इंटू 35 प्लस 6। सो व्हाट वी गेट स्टूडेंट हियर, a प्लस 35 माइनस 1 दैट इज 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17। सो a प्लस 17d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 17 टाइम d डैश इक्वल टू 5 5 जो 35, 3 कैरी, 5 3 जो 15 और 3 18, 185 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 5 जो 45, 5 कैरी 4, 9 3 जो 27, 31 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 6। ओके, सो 185 प्लस 4 दैट इज 189 डिवाइडेड बाय 315 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा? 321 है ना। तो a प्लस 17d डिवाइडेड बाई a डैश प्लस 17 टाइम d डैश, यानी t 18 टर्म ऑफ द सीरीज, रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, यही तो फाइंड करना था मुझे। तो ये कितना आ गया मेरा? ये आ गया मेरा 3 2 5 1 6। इसको थोड़ा सा अगर कैंसिल हो रहा है 3 से तो कर लेंगे, 3 6 जो 18 होता है एंड 3 3 जो 9, यहाँ पे 3 1 जो 3 0, 3 7 जो 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63/107। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ देयर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। हमें क्या दिया है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। एक ही ए पी है, सेम ए पी के सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है बेटा हमें, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल है किसके? सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। ठीक है, ये हमें गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, एंड हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, है ना। एस पी प्लस क्यू वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी प्लस क्यू। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। So we have given sum of first p term equal to sum of first q term, then we have to find out sum of first p term and sum of first q term and then equate both of them. So let's see. तो sp sum of first p term, तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट a be the first term and d be the common difference. ठीक, let us suppose that a is the first term and d is the common difference of this ap. Okay, so sum of p term equal to, by formula ये हो जाएगा p by 2 2a plus p minus 1 into d. Okay, and similarly sum of first q term sq is equal to, by formula sum of q term q upon 2 2a plus q minus 1 into d. Now we have to equate both of them because it is given that sum of first p term is equal to sum of first q term. So now equating both of them, we get p upon 2 time 2a plus p minus 1 into d equal to q upon 2 time 2a plus q minus 1 into d. So this amount is cancel out. Now multiply by p. So 2ap plus p का यहाँ multiply होगा बेटा p into d and within bracket p minus 1 equal to यहाँ हो जाएगा 2aq plus q into d within bracket q minus 1. Okay,
सो 2AP, ये 2AQ को इधर ले आओ बेटा, -2AQ इक्वल टू Q इंटू डी विद इन ब्रैकेट Q माइनस 1 एंड माइनस ये अमाउंट जाएगा लेफ्ट में, सो P इंटू डी विद इन ब्रैकेट P माइनस 1. सो हेयर टेकिंग 2A कॉमन वी गेट विद इन द ब्रैकेट P माइनस Q एंड हियर क्या कॉमन मिल रहा बेटा, यहाँ पे D को कॉमन ले लेंगे, सो वी गेट हियर Q स्क्वायर माइनस Q, ओके, Q स्क्वायर माइनस Q and minus P square and minus plus P. So we can write it like that is Q square minus P square, Q square minus P square within one bracket and Q square minus P square, P minus Q in another bracket plus P minus Q. Okay, so 2A P minus Q equal to क्या हो जाएगा बेटा, D. P माइनस क्यू हम अगर कॉमन ले लें, ठीक है ना, P माइनस क्यू अगर हम कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ सिंस इट इज़ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट लाइक, माइनस कॉमन लेते हुए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट लाइक P माइनस क्यू इन वन ब्रैकेट एंड P प्लस क्यू इन अनदर ब्रैकेट. सो आफ्टर टेकिंग कॉमन P माइनस क्यू वट वी गेट हियर, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा माइनस P प्लस क्यू. ओके, सो माइनस ऑलरेडी है, P प्लस क्यू, कुछ ऐसा मिलेगा बेटा यहाँ पे. ओके, सो दिस अमाउंट गेट कैंसिल आउट, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी D अपॉन 2 टाइम 1 माइनस P प्लस क्यू. ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ये वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी A की आ गई. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड सम ऑफ अस P प्लस क्यू टर्म. ठीक है ना, सो फाइंड करते हैं उसे. सो एस P प्लस क्यू, सम ऑफ अस P प्लस क्यू टर्म लगाएंगे फार्मूला. सो बाय फार्मूला इट विल बिकम P प्लस क्यू बाई 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ओके, नाउ P प्लस क्यू बाई 2 इंटू द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, D अपॉन 2 टाइम 1 माइनस P प्लस क्यू. तो सब्सटीट्यूटिंग हियर D अपॉन 2 टाइम विद इन ब्रैकेट 1 माइनस P माइनस क्यू, मैंने इसको ओपन कर दिया, माइनस को है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 1 माइनस P माइनस क्यू एंड प्लस D टाइम P प्लस क्यू माइनस 1. ओके, सो दिस बिकम P प्लस क्यू बाई 2 एंड 2 कैंसिल आउट और D ले लेंगे बेटा इन दोनों में कॉमन, देन वी गेट 1 माइनस P माइनस क्यू एंड हियर प्लस P प्लस Q माइनस 1. ओके, सो प्लस 1 माइनस 1 माइनस P माइनस Q प्लस Q कैंसिल आउट, वी गेट P प्लस क्यू बाई 2 एंड विद इन ब्रैकेट D इंटू 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0. तो सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म विल बी 0. क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Now next, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 11. सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म ऑफ APR A B and C. हमें क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म ऑफ APR A B and C. एस P एस Q एस आर, ये A है, ये B है, ये C है. सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म ऑफ एन APR A B and C रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, A अपॉन P टाइम Q माइनस R प्लस B अपॉन Q टाइम Q माइनस R के बाद नेक्स्ट है R माइनस P प्लस C अपॉन R टाइम P माइनस Q. ये हमें प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट्स, A अपॉन P टाइम Q माइनस R प्लस B अपॉन Q टाइम R माइनस P प्लस C अपॉन R टाइम P माइनस Q इक्वल टू 0. तो ये अमाउंट बराबर 0 के हमें प्रूव करना है. और कंडीशन हमें जो दी गई है वो यही दी गई है कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली A B एंड C.
तो हमें करना क्या है बेटा, पहले इनके फार्मूले ओपन करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में और प्रूव करेंगे उसको किसके, 0 के बराबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एस पी मीन्स यहाँ पे हम सिंस बेटा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों का। इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज गिवन एज स्मॉल ए, सो वी आर नॉट सपोज टू टेक द वेरी फर्स्ट टर्म एज स्मॉल ए, है ना। हमें जो फर्स्ट टर्म हम स्मॉल ए से लेते थे, ठीक है, वो अभी स्मॉल ए नहीं लेंगे, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज गिवन एज स्मॉल ए, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा। सो लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, कुछ ऐसा हम कर लेंगे यहाँ पे, है ना। कैपिटल ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो नाउ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज गिवन एज ए, सो वी हैव टू फाइंड एस पी। तो बाय फार्मूला कितना होगा, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ओके, एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म एस क्यू इज इक्वल टू, पहले एक को ही सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरे को देखेंगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ ये अमाउंट मेरे पास है ए के बराबर, कितने के बराबर है ये, ए के बराबर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे। सो 1/2 टाइम 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a अपॉन पी। ओके, ये p कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड, बिकॉज बेटा मेरे को यहाँ पे क्या a अपॉन पी चाहिए मेरे को। सो a अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 टाइम ये अमाउंट, 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा a प्लस p minus 1/2 time d equal to a upon p. Okay, this is the first. Similarly, sum of first q term sq is equal to q upon 2a plus q minus 1 into d, and which is given as b. So q को अगेन राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे a प्लस q minus 1/2 टाइम d इक्वल टू b upon q. This will be second. And similarly sum of first r term, that is r upon 2a plus r minus 1 into d, d कैपिटल लिया हुआ है तो कैपिटल ही यूज करेंगे। ओके, d कैपिटल है ना, कॉमन डिफरेंस। सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू c। सो 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर एंड r जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा। सो हमें मिलेगा a प्लस r माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ओके, इंटू d equal to c upon r. This is equation number 3rd. Now substitute the value of a upon p, b upon q and c upon r in the given equation. जो ये प्रूव करना है मुझे, इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो substituting the value of a upon p, b upon q and c upon r in equation number a. Okay, so substitute करेंगे बेटा यहाँ पे वैल्यू, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखिए। a upon p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a प्लस p माइनस 1/2, a प्लस p माइनस 1/2 टाइम d। ओके, a प्लस p माइनस 1/2 टाइम d, सिंस इट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन p, और मल्टीप्लाई विथ q माइनस r। ओके, q माइनस r। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा b अपॉन q। सो वैल्यू ऑफ b अपॉन q इज a प्लस q माइनस 1/2 इंटू d, a प्लस q माइनस 1/2 टाइम d एंड मल्टीप्लाई विथ r minus p. Okay, multiply with r minus p and plus c upon r. The value of c upon r is a plus r minus 1/2 time d, a plus r minus 1/2 time d, and this amount will multiply with p minus q. Okay, p minus q. ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया इस इक्वेशन का, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, है ना, मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 प्रूव करना हमें, ठीक है। सो पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सो ए क्यू है ना, ए इंटू क्यू, ए क्यू माइनस ए आर, ठीक है, और इस अमाउंट का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, प्लस p माइनस 1/2 टाइम p माइनस 1/2 टाइम डी क्यू, एंड इसका आप नेक्स्ट r से करेंगे तो माइनस p माइनस 1/2 टाइम डी आर। ओके, एंड सेम ए आर, a into minus p, that is minus ap, and this amount multiply with r, that is q minus 1/2 time dr. Okay,
एंड माइनस, ठीक है, ये अमाउंट प्लस का होगा, हाँ ठीक है, एंड माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, सो q माइनस 1/2 टाइम dp, q माइनस 1/2 टाइम dp. Now same multiplying here, a into p, that is ap, a into q minus of aq, and this amount multiply with p plus r minus 1/2 time dp, and this amount multiply with q, तो minus r minus 1/2 टाइम dq, है ना. तो देखिए aq कैंसिल आउट, माइनस AR प्लस AR कैंसिल आउट, और AP माइनस AP कैंसिल आउट, और जो बचे हुए हैं बेटा ये भी कैंसिल होंगे. ओके लिसन, ये भी कैंसिल होंगे. पहले मैं इनको कलेक्ट कर दे रहा हूँ एक साथ. तो मेरे पास यहाँ पे बचा 1/2 टाइम P माइनस 1 इंटू DQ, ठीक है, ये बचा मेरे पास. ओके, माइनस 1/2 टाइम P माइनस 1 टाइम DR, ओके, एंड दिस प्लस 1/2 टाइम Q माइनस 1 इंटू DR माइनस 1/2 टाइम Q minus 1 into dP, okay, and this amount plus 1/2 टाइम R minus 1 into dP and minus 1/2 टाइम R minus 1 into dQ. अब ध्यान से देखिए बेटा, जो जो कॉमन चीज़ें मिल रही है ना, 1/2D हर जगह कॉमन है, तो 1/2D हम क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे. सो टेकिंग 1/2 टाइम D कॉमन, व्हाट वी गेट हियर, यहाँ क्या मिलेगा, 1/2 टाइम D बाहर ले लिया तो बचा यहाँ पे P माइनस 1 टाइम Q, और यहाँ पे माइनस P माइनस 1 टाइम R, प्लस यहाँ पे Q माइनस 1 टाइम R, ठीक है, यहाँ पे माइनस Q माइनस 1 टाइम P, एंड हियर प्लस R माइनस 1 टाइम P, एंड हियर माइनस R माइनस 1 टाइम Q. अब थोड़ा सा देख लीजिए अंदर कैंसिल होने वाले कौन कौन से टर्म है. ओके, सो 1/2 टाइम D, now multiply beta, so this is PQ minus Q, and here minus R into P minus RP, and minus R into minus 1, that is plus R, here plus QR minus R, and here minus PQ, and minus P into minus 1 plus P, and here plus RP, P into minus 1, that is minus P, and here minus Q into R minus QR, and minus Q into minus 1, that is plus Q. Okay, now see PQ minus Q and plus Q, minus RP plus RP plus R minus R plus QR minus QR, and plus P minus P. So 1/2 time D multiply with 0, that is 0, and which is our right hand side. तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Okay student, now the next question. Now the next question is question number 12. The ratio of the sum of m and n term of AP is m square ratio n square. हमें क्या दे रखा बेटा, ratio of sum of m and n term of an AP, means we have given, this is question number 12. Question number 12, हाँ question number 12. Sum of m term divided by sum of n term, है ना. इनका रेशियो मुझे दिया है sm और sn का, वो कितना दिया है मुझे, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है. एंड सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m minus 1 एंड 2n minus 1. रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, बेटा कहीं कहीं पे t से डिनोट करते हैं टर्म को, कहीं कहीं पे a से. चॉइस इज योर्स, ठीक है. आपको ये ना लगे कि सर ने यहाँ tm और tn क्या लिख दिया है. सो यू कैन ऑल्सो लाइक am अपॉन an, है ना. t स्टैंड फॉर टर्म, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हेयर tm एंड tn, ठीक है, वो भी टर्म को ही डिनोट करता है और a भी टर्म को डिनोट करता है. सो वी हैव टू शो दैट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना. वी हैव टू प्रूव am अपॉन an इज, कितना करना है प्रूव बेटा, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, ये हमें प्रूव करना बेटा, और ये हमें गिवन है. ओके, सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं. देयर इज एन AP whose mth और n
whose sum of whose mth and nth terms are in the ratio of m ratio and n ratio. Okay, m ratio divided by m square divided by n square. Sorry for the inconvenience. तो हमें दे रखा है कि सम ऑफ m टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स जो है वो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि उसी AP का जो m और n टर्म का रेशियो होगा वो कितना होगा, 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1. सो अगेन लेट करेंगे बेटा, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ठीक है। लेट A be the first term and D be the common ratio of this arithmetic progression. Now सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा बेटा, SM अपॉन SN, ठीक है। बाय फार्मूला कितना होना चाहिए, m अपॉन 2a प्लस m - 1 इंटू डी एंड डिवाइड बाय SN n अपॉन 2a प्लस n - 1 इंटू डी एंड दिस इज गिवन एज m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ओके, दिस 2 and 2 get cancel out and this m cancel out, this n and this n also cancel out. So what we get 2a plus m - 1 into d divided by 2a plus n - 1 into d is equal to m upon n. ओके, हमें जो प्रूव करना है उसको भी ध्यान से यहाँ पे देखिए. अगर मैं लिखना चाहूँ mth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m - 1 इंटू डी. ओके, और nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा a प्लस n - 1 इंटू डी एंड दिस हैज़ टू बी 2m - 1 अपॉन 2n - 1. ये मुझे दिखाना है. दिस इज वी हैव टू डू, है ना. व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस. तो बेटा 2a प्लस m - 1 टू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n - 1 टू डी इज m अपॉन n. यहाँ तक हम कर चुके हैं. अब हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में चेंज करना है. तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा. सो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर वी गेट a प्लस m - 1 अपॉन 2 टाइम d डिवाइडेड बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर वी गेट a प्लस n - 1 अपॉन 2 टाइम d इक्वल टू m अपॉन n, है ना. m अपॉन n हो जाएगा ये, ठीक है. अच्छा, दिस 2 and 2 गॉट कैंसिल आउट. सो ये तो कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस m - 1 अपॉन 2 टाइम d डिवाइडेड बाय a प्लस n - 1 अपॉन 2 टाइम d इक्वल टू m अपॉन n. ठीक है, आगे बात समझ में. ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. हमें दिखाना है रेशियो ऑफ mth और nth टर्म. सो क्या ये m - 1 अपॉन 2 m - 1 में कन्वर्ट हो सकता है. फॉर दिस वी हैव टू पुट m - 1 बाई 2 इक्वल टू m - 1. सो अगर मैं m - 1 अपॉन 2 को बराबर किसके कर दूं, m - 1 को, है ना. तो मुझे क्या मिलता है, m - 1 इज इक्वल टू 2m - 2. सो 2m, ये 2 इधर आएगा तो -1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2m माइनस m. यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे 1 मिलेगा. 1 इज इक्वल टू 2m - 1 दैट इज m. सो m की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, यहाँ से 1 मिल रही है. सिमिलरली वी हैव टू इक्वेट n - 1 बाई 2 इक्वल टू कितने के बराबर रखना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए n - 1. सो n - 1 बाई 2 इक्वल टू n - 1. मुझे इक्वल बनाना ना बेटा, सिंस मुझे ये अमाउंट इसके बराबर प्रूव करना है. तो उसके लिए मैं कंडीशन यहाँ बना रहा हूँ. ए मेरा ठीक हो चुका है, बट m - 1 है, यहाँ पे m - 1 बाई 2 है. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि m की वैल्यू क्या हो सके यहाँ पे ना. सो यहाँ से क्या मिलेगा, n - 1 इज इक्वल टू 2n - 2. सो ये 2 इधर आ जाएगा, -1 प्लस 2 इक्वल टू 2n माइनस n. सो यहाँ से n की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 1. m और n दोनों की वैल्यू हमें 1 मिल गई है. ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा काम होता है आसान, देखना पड़ेगा. सो m की वैल्यू अगर 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0. बेटा ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 a प्लस 0d मतलब 0 ही हो गया है पूरा. ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं होगा ये, ठीक है ना. इस तरीके से इसने नहीं होना है. तो यहाँ से इसको कर देंगे हम रफ, ठीक है ना. सो 2a प्लस m - 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू m अपॉन m. यहाँ तक हम प्रूव कर चुके हैं और हमें इस अमाउंट को इसके इक्वल करना है, ठीक है ना. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो और डिविडेंडो फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखता हुआ
प्रतीत हो नहीं रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम कर चुके थे, ठीक है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वीडियो अधूरा रह गया था। तो यहाँ से हमने आगे वो क्या करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो बन जाएगा 2an प्लस एन डी एम माइनस 1 इक्वल टू 2am, है ना, 2a इंटू एम प्लस एम डी एन माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1। Now solve this equation. So 2an plus mnd minus nd इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2am प्लस mnd माइनस md। तो बेटा कुछ अगर कैंसिल हो रहा है, mnd एंड mnd गॉट कैंसिल आउट, ये 2a वाले टर्म को इधर ले आएंगे। सो 2an माइनस 2am एंड दिस अमाउंट विल गोज टू लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा nd minus md. Now taking 2a common here we get n minus m and यहाँ पे d अगर कॉमन लेते हैं तो मिलता है n minus m. This amount got cancel out. So value of d कितनी आ गई बेटा, 2a. Okay, the value of d is 2a. Now see we have to prove that the ratio of mth and nth term equal to this. तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। So am upon an इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सो अब करना क्या है आपने, पुट द वैल्यू ऑफ d इज 2a, d की जगह पे 2a पुट कर लेंगे। सो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। बिकॉज बेटा हम रिलेशन डेवलप कर चुके हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 टाइम में किसके, फर्स्ट टर्म के। सो डी की वैल्यू उठा के 2a रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर है नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो व्हाट विल यू गेट, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर वी गेट हियर 1 प्लस 2 टाइम m माइनस 1 एंड टेकिंग a कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर वी गेट हियर 1 प्लस 2 टाइम n माइनस 1। दिस अमाउंट गोज कैंसिल आउट, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2m minus 2 divided by 1 plus 2n minus 2, this will become 2m plus 1 minus 2, that is minus 1 upon 2n plus 1 minus 2, that is minus 1, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, 2m minus 1 upon 2n minus 1। सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको कंप्लीट करके वॉच करें और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उसको आप देखें, बाकी हम डिस्कस करेंगे जब हमारे गूगल मीट क्लास होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ।